Okay. Today we are going to study the classifications of drugs affecting the human body. Okay. This would be our first capturing video, inshallah. We will see the difference between the direct contact with the students and the indirect contact with the students on YouTube. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir Hamza from Anesthesia and Post-RN. Today this is the topic from the book of Materia Medica. So we are going to study classifications of drugs affecting on the human body. What are the objectives possibly? The classifications of drug, purpose of drug classifications, why we are going to classify the drugs in the medicine. Number 2, 3, how drugs affect the human body, antibiotics and the chemotherapy, analgesics, antipyretics, human hormonal agents, antihistamines, anti-anemics, anesthetics agents and antispasmodics. These are the drugs which are considered will come in your curriculum, so we are going to study today in these. In our lecture. Drugs. Marker, can you help? Okay, the drug. Anyone know what is the drug? A drug? Okay, so let's talk about the drug. Drug are the chemicals. These are the chemicals, okay, of low molecular masses that interact with molecular, macromolecular targets and produce a biological response. Drug is a chemical which when comes in the body, it will produce a biological response. Okay, it is called as drug. कोई भी ऐसी चीज जो हम लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स बायोलॉजिकली हम रिस्पॉन्स देखते हैं तो उसको हम ड्रग कहते हैं. जिस तरह अब अगर लेट्स टॉक अबाउट कोकेन, इट्स एन एडिक्टिव ड्रग ना. सारे कोकेन जो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स एडिक्टर्स होते हैं, नशेई होते हैं, वो लेते हैं. अब कोकेन इज अ ड्रग because it is producing a biological response in someone's body. That is why we are considering it as drug. Similarly, if a person is taking herbs, mint. What is mint? Pudina. We are drinking the mint tea. You know that? Yes. But the mint tea is not as called as drug because it is not producing any instant biological effect on the human body. This is why we called it as remedy or herbal drug, herbal medicine. But it's not drug. Understood? Yes. It's a home remedy, vegetables, it comes in the vegetable scenarios, vegetable list classification, but not in the drug because it is not producing any biological effect, response instantly on your body. This is why we call it as vegetable classified drug. Comes in the classification of medicine, vegetables. So cocaine is a drug because it is producing biological effect. बायोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट होगा? मरीज जो है वो जहाज बन के घूमता है. इट्स लाइक ही इज फ्लाइंग एरोप्लेन. ऐसे ही? Yes. Okay. So now let's talk about that classification. I hope you can now you will going to understand that what is the definition of drug. I hope I don't need to remind it and remember it again. I don't need to revise it again. Am I right? Yes. Classification. A drug classification is a term. The classification is a term used to describe medications that are grouped
together because of their similarity. Now, let's talk about the BSN, CNA, LHV, DPT and AHS. These are the classes because you people belongs to the CNA or LHV, and these persons belongs to CNA. So they are differentiate the classification. We have make the differentiation programs to classify the students from one to another. Now, if someone has the assembly hall gathered you are all people gathered in the assembly hall, you can differentiate yourself that he would be the DPT, he would be from the DPT, this would be from the LHV, and he is from LCNA or he is from BSN. Understood? Yes. So this is the similarly we have the same practices in the drug classification. The drug classification class is a term that used to describe the medication that are grouped together because of their similarity. Because of their similarity, some drugs have the same things in between from the others, like Panadol. Now, Panadol, what is in it? Paracetamol. What is the biochemical name of it? Sorry? What is the chemical name of this drug? You should know. I have already teach you. No. Yes. What is it? Acetaminophen. Okay, acetaminophen. So similarly, the class of Nubraford. If you goes to a medical store, you have seen that Nubraford and Panadol are he has put it on the same shelf. Why? Because they have the same gender, same classification, same chemical name, same agenda. So he has put them on the same shelf, but the antibiotics are in another shelf. So this is why they have classified things. अब इसमें भी क्या है? पैरासिटामोल है, then acetaminophen है. It's the same. Understood? Yes. So this is why we are going to classify the drug, how we will understand the consequences and side effects and indications and contraindications of these drugs. So this is the reason why we are going to study. Okay? Yes. Next. Purpose of drug classification. Why are we study the purposes? Why are we study the classifications? To ensure that use of drugs safely to achieve the utmost benefit. This is the one purpose. To achieve the useful drug. If the patient comes with fever and you are going to give the Gravinate, so this is not a good thing, because you are giving the antiemetic drug to the patient who is suffering from the fever. You people are satisfied with I am speaking English? It's fine for you or not? Yes. It's fine? Yes. So, if the person comes with the wants antipyretic medicines and you are giving antiemetics, this would be very difficult for him to understand, and this will not affect effectively on him. So this is why we have to classify it, because we have to make sure that in the safely ensure the use of the drug safely to achieve the utmost benefits. What we are demanding, that why we have to achieve it. So this is the reason why we are going to do it. We are taking the classifications. The second is it helps to identify the drug interactions and the potential for drug resistance and ensures the appropriate treatment staging. Now, the drug and drug interaction, DDI, drug and drug interactions. ये क्या होता है? Anyone know about it? No. Okay. So drug and drug interaction is like this. Let's make an example.
A person is taking tablet Citalin. Citalin tablet, it's a tablet in which we acetalopram. It's anti-anxiety drug, anti-depression drug. It's actually it's class from SSRI, serotonin reuptake inhibitor. It's antidepressive drug which we are using for the patients who are suffering from the depression. Okay, so when you are taking this medicine along with any beta blocker, okay? Beta blocker means the thing which is going to reduce your heart rhythm is called as beta blocker drugs. We are just making an example, but before the example we have to understand that what we are studying, what we are going to make an example. So beta blocker is a thing, which is a drug which are reducing the heart rate by reducing the power of SA node, reducing the rhythm of SA node. It affect on the SA node and reduce the rate. बीटा ब्लॉकर का ये फायदा हो गया. अब अगर हम एसिटाइलोप्राम के साथ बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं तो there is a chance you may have drug interaction and you would have the severe bradycardia. You may have, because of this beta blocker, you may have the acetylopram's effect prolonged, its half-life. It will be in your body for 24 to 36 hours. Still, its half-life it would be around this. Okay? But if you are taking the beta blocker similarly with that drug, it will increase, multiply by 3 times. So it will go 72 hours. So that means if you are taking this drug, so that means you will have the same effects of escitalopram for 3 days. This would be very lethal. So this is the reason why we are studying the drug interaction, drug interaction. That one drug is we are taking, it should be not contraindicated with other drug what we are already taking. Okay? Understood? Yes. नहीं समझ आई? Okay. Next we are going to take another example. Okay, so we are going to take another example of Panadol with aspirin. Yeah. You know what is the aspirin? Aspirin tablet and Panadol. You know what is the effect? What is the pathological response of aspirin? Okay, and what is the response of Panadol? It's a painkiller, antipyretic and painkiller. Okay. It's not a good example. You will get stuck in this as well. Yeah. Now come on the same home remedy. हमारे घर में हमारी माएँ, आप लोगों को भी, आप लोगों की माएँ भी यही कहती हैं, बेटा जब मछली खाओ तो दूध ना पीना. Yes. Why? उससे क्या होता है? Yes, because the contamination, the thing which is available in the protein, the pure protein which is available in the fish, it is contraindicated with the milk. But it is a specific, there is a specific fish type which is contraindicated with that thing, which is with the milk. So, but similarly in the Pakistan there is a thing that we should not have the fish along with the milk. But there is only a single type of fish which is contraindicated. But the rest of them are
easily we can take, but this is a myth, so we are going to do that. मतलब ये गलत है. Yes, no, it's a myth. गलत है, ये गलत है, लेकिन हम लोग खा रहे हैं, हम लोग उसको ऐसा हेरिडिटी चला रहे हैं कि मछली के साथ दूध नहीं पीना, हम हेरिडिटी के साथ चला रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मिथ है कि सिर्फ एक टाइप की मछली है जो ये प्रॉब्लम कॉज करती है, अदरवाइज कोई भी ऐसी मछली कॉज नहीं करती है, सिर्फ एक टाइप की है। उस टाइप की मछली वो सिर्फ ब्रिटेन अमेरिकन साइड पे होती है, या ब्रिटिश कोलंबिया और यूके साइड पे अवेलेबल होती है, यहाँ पे उनकी नस्ल ही नहीं है, वो नापैद हो चुकी है, दे आर नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है। लेकिन इसी तरह इंट्रैक्शन है उनका, उसके अंदर जो चीजें कंटेन करती हैं, जो उनके अंदर जो प्रोडक्ट है वो फिश के साथ उसकी ड्रग इंट्रैक्शन हो रही है, केमिकल इंट्रैक्शन है। सो हमने क्यों क्लासिफाई करते हैं कि हमें पता हो कि कौन सा ड्रग किस ड्रग के साथ नहीं ले सकते। जिस तरह मछली के साथ दूध नहीं पी सकते, इसी तरह हमें पता हो कि हमने पैराडोल ली है तो एस्पिरिन नहीं ले सकते, हमने एस्पिरिन ले ली है तो डिस्पिरिन और टैबलेट पैराडोल नहीं ले सकते, या हमने न्यूट्रलफोर्ड ली है और हम पैराडोल भी ले लेंगे तो दीज आर द सेम थिंग्स। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ड्रग और ड्रग इंटरेक्शंस क्या होती हैं, इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं चीजों। अंडरस्टूड? So types of classification, there are 3 types of classifications. There are 3 types of classifications. Number 1 is legal classification. Number 2 is pharmacological classifications, and number 3 is therapeutic classifications. The word legals mean just like as ke which things should be prohibited from the people common community, like the addictive drugs. हमें addictive drugs को prohibited रखना है, हमें double locker में उनको रखना है। We have already studied about this कि हमने कौन सा drug कहाँ पे रखना है ना। तो इसी तरह उनको हम legal drugs कहते हैं, उनको कानून की तरफ से बकायदा properly secure किया जाता है कि ये legal drug है, इसको legally हमने secure करके रखना है। ठीक है। The second is pharmacological classification. Pharmacological classification से मुराद ये है, जिस तरह के आपने देखा कि अब कुछ एंटी एमेटिक्स हैं, कुछ एंटीपायरेटिक्स हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, these are classification, pharmacological classification. ये थेरेप्यूटिक है। Pharmacological classifications means कि आपका एक ड्रग बना है एट्रोपा वेराडोना से, okay, this is called as atropine, ठीक है। This is, and second is epinephrine. These are different, broadly different from one another. So हमने इनको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया दो ड्रग्स को। हालांकि दोनों में काम क्या कर रही हैं, ये भी जो है ना, ये क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये हार्ट रेट को भी बढ़ाती है, बीपी को भी बढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करती है, ठीक है। अब ये तीनों काम कर रही है, लेकिन है तो सिमिलर ना, वो हार्ट रेट को बढ़ाती है, लेकिन ये खाली हार्ट रेट, बीपी और सब कुछ बढ़ा रही है। अब ये दोनों फार्माकोलॉजिकल क्लासिफाई किया कि भाई ये वाली इसमें इस वक्त ये चीज देंगे और इस वक्त ये चीज देंगे, ठीक है। अब थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में क्या है जी, एंटीपायरेटिक्स है, बुखार है तो हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है। उसके बाद उल्टी आ रही है तो एंटी एमेटिक्स दे देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुई है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दें, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या क्लासिफिकेशन 3 तरह की है। लीगल में वो ड्रग्स जो प्रोहिबिटेड कानून की तरफ से हमें प्रोहिबिटेड है कि हम पब्लिक में उनको ओवर द काउंटर मेडिसिन के तौर पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल एडिक्टिव ड्रग रिस्क, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में वो है जो ड्रग्स तो सेम है, ड्रग्स के कंटेंट्स और उनकी स्पेसिफिकेशन सेम है, वो काम इफेक्ट्स सिमिलरली कंपैरेटिवली सेम करते हैं, बट दे आर classically different from one another. So that's why we are going to study the pharmacological classification as well. The therapeutic is antiemetic, antipyretic, anti-inflammatory, anti-chemotherapeutic drugs. All are these things which comes in and therapeutic, because we are going to see
First, therapeutic. Therapeutic means any disease, to treat any disease, any kind of abnormality, to treat for the which are the thing we are using to classify it. Okay. Now first क्या हो गया? Okay. So next is, where is our legal classifications. Legal classifications are divided in three types. Legal classifications are divided in three types: anatomical therapeutics, chemical ATC, anatomical therapeutic classification system, controlled substance act, CSA, और misuse of act, drug act. ठीक है, तीन तरह की चीजों का एनाटॉमिकल हमने इनको थ्री डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर क्लासिफाई करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द एटीसी. क्या होता है एटीसी? एटीसी इज anatomical therapeutic classification. What is it? World Health Organization created a multi-dimensional system in 1976 called the Anatomical Therapeutic Chemical Classifications System, which categorize a drug based on 5 different levels. ये बेसिकली किसने ओरिजिनेट किया हुआ है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1976 में इसको ओरिजिनेट करवाया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सी ड्रग किस लेवल पे रखी जाएगी. उन्होंने 5 लेवल बनाए कि यार ये वाली ड्रग हाई सेंसिटिव है, ये लो सेंसिटिव है, ये सेमी सेंसिटिव है, व्हाटएवर इट इज. वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर दैट नंबर 1 level would be that describe the organ system the drug treats. वो हम जिस ऑर्गन को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, जिस ऑर्गन को ट्रीट करने के लिए दवाई दी जा रही है, हम वो लेवल को स्टडी करते हैं. उसको जब हम करते हैं उसको हम कहते हैं लेवल 1. मतलब we are going to give the medicine for liver. Okay, we are going to give the medicine for liver disease like hepatitis C, HCV. Okay, hepatitis C virus. So we are going to give the drug for this. So it is level 1 classification of ATC. हम मेडिसिन दे रहे हैं डिस्क्राइब स्पेसिफिक ऑर्गन को, ताकि उसकी बीमारी को खत्म किया जा सके, बिकॉज ये एक ऑर्गन पे बीमारी मौजूद है. ठीक है. सेकेंडली, इट्स जस्ट एन एग्जांपल. लेवल 2 डिस्क्राइब द ड्रग्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट. ड्रग्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट. The second would be, the level 1 would be determine us that which kind of drug is we are giving. Second is describe the therapeutic effects. So we have given a drug for the hepatitis C virus. Okay. So what therapeutic effect will we achieve? Like we will gonna achieve the reduce the viral load. ये हमें कौन बता रहा है? सेकेंड लेवल. कि हमने लिवर के लिए एक मेडिसिन दी, हेपेटाइटिस उसके अंदर बीमारी थी, उस सेकेंड लेवल में बताया कि उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या आया. अब थर्ड लेवल क्या बता रहा है? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड मोड ऑफ एक्शन. अब थर्ड लेवल हमें क्या बता रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई आपने वायरल लोड तो कम हो गया उसका, लेकिन इसके पीछे हुआ क्या है? व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड दिस सिनेरियो? तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कहा जी वायरल लोड इस वजह से कम हुआ है बिकॉज दिस ड्रग, let me talk about the specific drug, anti-hepatitis C. I'm not remember what is the exact name of that drug. Anti-hepatitis C virus drug. It's available. Let's talk about acyclovir. It's antiviral drug, no? Acyclovir. Okay. Now let's, अब हेपेटाइटिस सी को मारने के लिए हमने कहा कि जी ऑर्गन है, ऑर्गन पता चल गया किस ऑर्गन को दिया, पता चल गया कि हम उसका फायदा क्या हुआ. अब उसके पीछे हुआ क्या था? हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी. साइकोलॉजी का एसाइक्लोविर ने क्या किया था? लेट्स टॉक अबाउट, वी आर जस्ट, इट्स प्रिज्यूम्ड ड्रग, इट्स नॉट कंफर्म कि एसाइक्लोविर ही काम कर दिया. नो,
but it's a presumed drug because I'm not remembering what is the exact name of it, so that's why we are using it. So हमने जो है मोड ऑफ एक्शन में देखा कि उसका जो वायरस का जो सेल था, जो हमने दवाई दी थी, उसने जाके उसके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सारे के ऊपर जब काम किया, उसमें से उसने क्या किया, उसने इसका साइटोप्लाज्म सेल वॉल जो थी उसको रप्चर कर दिया। तो क्या हुआ कि रप्चर, बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ द सेल वॉल, उसका साइटोप्लाज्म सारा जाया हो गया, फैल गया और वो स्टेबल नहीं रह सका वायरस का स्ट्रक्चर। तो उससे क्या हुआ, इट्स जस्ट अ एग्जांपल, इट्स नॉट अ कंफर्म केस, साइक्लोमैग यही काम करती है, वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर पूरे का पूरा जाया हो गया, तो वायरस डेड हो गया। हमने क्या थर्ड लेवल पे हमने क्या डिटरमाइन किया कि मोड ऑफ एक्शन क्या है। कुछ मेडिसिन होती है जो जो है सेल वॉल रप्चर करती हैं, कुछ जो है डीएनए रेप्लिकेशन कर देती हैं, कुछ डीएनए को और या आरएनए को आगे प्रोसीड नहीं करने देती, जिसकी वजह से उसकी आगे मिरर इमेज नहीं बनता। सिमिलरली हमने क्या देखा थर्ड में, मोड ऑफ एक्शन क्या था, जो दवाई दी थी उसने किस तरीके से उस वायरस पे काम किया, उसको मारा किस तरीके से। वो कहते हैं ना कि जब लड़ाई होगी तो उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर उसको नीचे पे पीटा, फिर उसके ऊपर बैठ के उसको पीटा। सिमिलरली हमने क्या किया, अब देखो, अब लड़ाई हुई थी, लड़ाई में हमने अपने फौजी भेजे, हमें कहा कि हमारे ऊपर जो है ना किसी दूसरे कंट्री से हमारे ऊपर बम चलाए गए, बम आ गया हमारे पास, हमने उसके टैंक चला दिए, हमने भी अपना मिसाइल चला दिया। अब उस मिसाइल ने वहां जाकर उनको किल तो किया, पर अब तफसील को पूछा कैसे मारा। वो कहेगा पहले हमने उसको जो है ना ताक में लिया, फिर हमने उसको गोली मारी, फिर हमने उस बंदे को देखा जो वो मार रहा था, फिर हमने उसके ऊपर निशाना लगा के हमने उसको मारा। सो दिस इज द सिमिलरली द मोड ऑफ एक्शन, व्हाट वाज द मोड, हाउ वी किल दैट बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। थर्ड लेवल में हम वो पढ़ते हैं। सेकंड फोर्थ में है डिस्क्राइब द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज मींस कि हाउ दिस ड्रग विल हैज बीन प्रोड्यूस्ड, हमने वो पढ़ा। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज से मुराद इसकी बिलोंगिंग्स क्या है, कहां से ये हमारे पास ड्राइव होके आया है, और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इंडिकेशंस क्या होंगी, कंट्राइंडिकेशंस क्या होंगी। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एटीसी क्लासिफिकेशन के फोर्थ पॉइंट पे हम ये पढ़ते हैं। लेवल 5 पे क्या होता है, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप द ड्रग, essential the chemical name of the drugs such as finasteride or ibuprofen। फिफ्थ लेवल जो है हमें डिफाइन करता है कि भाई इसका नाम क्या रखेंगे। जिस तरह हमने देखा कि जंग तो हो गई, जंग में हमने उनको मार दिया, मोड ऑफ एक्शन पता चल गया। फोर्थ लेवल में हमने देखा कि जी हमने 25 टैंक इस्तेमाल किए, हमने जो है ना सुबह शाम टैबलेट दी, 1+1+1 सुबह दोपहर शाम टैबलेट दी। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के बताया कि इस तरीके से उसने काम किया, और उसके बाद हमने देखा इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कंट्राइंडिकेशन क्या होंगी, वो हमने देखी। फिफ्थ पे हमने कहा वो ड्रग का नाम क्या है, इस जंग का नाम क्या रखना है, गदर, फिर हमने रख दिया अल्फा। उसके बाद फिर हमने कोई और वजीरिस्तान में जो हुआ उसके ऊपर हमने डिफरेंट नाम रख दिया, ज़रबे अज़ब। सो दिस लाइक वी आर गोइंग टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू दैट मेडिसिन। अब ये साइक्लोमेर उठेगा यहां आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आए, इज इट फाइन, ठीक है, समझ आ गई है। किसी को नहीं आई तो प्लीज यू कैन आस्क अगेन, आई विल डिस्क्राइब अगेन। कोई पॉइंट समझ में ना आया हो हैं, दोबारा बताऊं, ओके। क्लासिफिकेशन ये थी एटीसी 1976 के अंदर उन्होंने WHO ने एक क्लासिफिकेशन निकाली थी। पहले ड्रग इस्तेमाल हो रहे थे लेकिन उनको समझ नहीं आती थी कि इनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करें, ठीक है। तो उन्होंने एक क्या किया, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें उन्होंने थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया। उसमें उन्होंने 5 लेवल्स बनाए। 5 लेवल में उन्होंने कहा लेवल 1 वो होगा जो बीमार है, ऑर्गन जो बीमार है। लेवल 2 पे हम देखेंगे वो काम जो हम दवाई दे रहे हैं वो काम क्या करती है, ठीक है। लेवल 3 पे हम देखेंगे कि उसने कैसे काम किया।
लेवल 4 पे हम देखेंगे कि उसके साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, मरीज को और क्या नुकसान हो सकता है ड्रग से। लेवल 5 पे हमने उसका नाम ड्राइव किया। अंडरस्टूड? सिंपल। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट, यूज लीगल, यूएस लीगल क्लासिफिकेशन। अब हमने नेक्स्ट जो था, हमने सेकंड जो लीगल ड्रग का सेकंड जो पोर्शन था हम वो पढ़ते हैं। यूएस के अंदर लीगल जो क्लासिफिकेशन यूज होती है ये जो है पूरी दुनिया में है। अब ये जो यूएस ने अपनी एक बनाई। फेडरल गवर्नमेंट पास द कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट CSA in 1970। This act established 5 drug classification, इसके भी 5 हैं, ठीक है, और schedules for drugs regulated by law according to the US Drug Enforcement Administration DEA Drug Enforcement Administration. Substance from any these classification may lead to the development of chemical dependence in one or both of the following forms: physical dependence or psychological dependence। ये जो यूएस की था, यूएस फेडरल जो है हमारे पास कंट्रोल ड्रग सब्सटेंस एक्ट था, इसके मुताबिक हम लोग हमारे पास जो है एक्ट आया जिसमें कहा डबल लॉकर में चीजें रखो, एडिक्टिव ड्रग्स हैं। अब इसमें दो तरह की हम डिपेंडेंस पढ़ते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस मींस, अब आई डोंट नो आपको आइडिया हो कि नहीं हो, लेकिन बॉयज को जरूर होगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो कहते हैं कि हम जब तक सिगरेट ना पिए हमें स्टूल पास नहीं होता है। ऐसा होता है। वो कहते हैं वो साइकोलॉजिकली उसके साथ स्टक हो चुके हैं कि मैं जब तक बाथरूम में बैठ के सिगरेट ना पीऊं मुझे स्टूल नहीं पास होगा, जो मर्जी मैं करूं, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहेगी। तो उसका क्या है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो चुका है उसके ऊपर, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, ठीक है। अब फिजिकल डिपेंडेंस क्या है? फिजिकल डिपेंडेंस मींस कि आप जो है, पेशेंट जो है आपका कह रहा है, आपने कहा फैंटम लिम्ब पेन का आइडिया है, फॉल्स पेन, फैंटम लिम्ब पेन, फॉल्स पेन, एक मरीज का हमने काट दिया होगा, बाल टांग काट दी है, ये भी साइकोलॉजिकल में आता है। फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल डिपेंडेंस, वी हैव इट, नो, फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस से मुराद यस, अब फिजिकल डिपेंडेंस में हम कहते हैं कि एक पेशेंट है, वो कहता है भाई जान हम मुझे जो है हेडेक है, उसकी हेडेक है, उसका स्ट्रक्चर पीछे से ये है कि एक होता है होम रेमेडी करना, जो है ना स्पिरिचुअल प्रेयर्स करना, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि उससे हेडेक ठीक नहीं होता, लेकिन जब मैं पैराडोल खाता हूं तो मैं ठीक हो जाता हूं। तो इट्स कॉल्ड एज फिजिकल डिपेंडेंस। ये क्या है? फिजिकल डिपेंडेंस। वो किसी एक फिजिकल चीज के ऊपर डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल क्या थी? स्मोक करना है तो मुझे स्टूल पास होगा। साइकोलॉजिकल है बिकॉज ये दे आर बोथ इंटर रिलेटेड, तो इसलिए हमें फिजिकली चीजों के बारे में पता होगा, फिजिकली ये काम करेगा तो उसको ये फायदा होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या है कि मुझे जो है फैंटम लिम्ब पेन है, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन उसकी टांग ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड फैंटम लिम्ब पेन। तो वो क्या है? साइकोलॉजिकल पेन है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। इसी तरीके से वो कहता है कि मैं जो है ना मुझे दर्द है बट देयर इज नथिंग, अब वो कह रहा है मुझे ड्रग दोगे मेरा पेन ठीक होगा तो मैं ठीक हूँ। अब उसको दवाई दे रहे हैं तो फिजिकल डिपेंडेंस आ गई, दवाई का असर होगा तो वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टूड? यस। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट, ये भी यूएस लीगल है। इसके अंदर जो है 5 शेड्यूल, जो अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो उसी के 5 शेड्यूल फर्दर बने हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 में वो कहता है कि इट इंक्लूड्स the drug that have high potency for abuse but are not approved for medically treatment like cannabis and heroin and cocaine। वो दवाइयाँ अब घरों में, अब अगर होम्योपैथी हम पढ़ते हैं और उसमें अगर होम्योपैथी पढ़ते हैं उसमें क्या है, आपके पास ऐसे ड्रग मिलेंगे आपको जिनको हम लोग हर्बल ड्रग्स, हर्बल पौधों से, अब जो है ना उसका कौन सा पौधा है, हेरोइन, हेरोइन को क्या कहते हैं?
किस पौधे के नाम क्या है? पौधा भी आता है उसका, कैनबीज। कैनबीज का पौधा आता है ये। जी जी जी। अच्छा बेटा, अभी जो है किस का रहता है जो वेरिफिकेशन वाला? ठीक है, आपका कब होगा? कल? हमारा आज होगा। आपका तो आज आ जाएंगे। आज 22 है, ठीक है ना? आज के बाद जिसका भी अगर आ रहा है ना, और अगर वो डबल फी होती है तो वो फिर बेटा आपको डबल ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना। सही, आज हमने सिर्फ एक दिन ऊपर कर दिया था कि अगर आज किसी का चले 21 आपको कहा हुआ था ना, तो आपका कल हो जाएगा। अच्छा, और आपका आज हो जाएगा। आपका कल 10 बजे तक आज आ जाएगा, ठीक है। और किसी का? जी बेटा, आपका कल। ओके, कल वो आपके उनसे बात हुई थी मामू से ना, वो कह रहे थे, ठीक है कल। और आपका सॉरी ब्रेक में, ठीक है। बाकी सबका वो सबमिटेड है? यस सर। चलो ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। द शेड्यूल 1 में क्या है? हमने 5 यूएस सब कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट में हमने जो है 5 शेड्यूल्स पढ़े हैं। शेड्यूल 1 2 3 4 5। उसमें क्या है जी? 1 में वो ड्रग्स आते हैं जो कि मेडिकली प्रूव नहीं है, लाइक कैनबीज एंड हेरोइन। हेरोइन अभी तक मेडिकली प्रूव नहीं है कि ये लोगों को मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्टिव ड्रग है जो कि प्योर फॉर्म में अवेलेबल होती है दुनिया में, प्योर फॉर्म में अवेलेबल। पेरिफेरीज में अफगानिस्तान के अंदर ये स्पेसिफिकली इसकी काश्तकारी की जाती है, ठीक है, और वो जो है स्मगल की जाती है इन अदर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो वो क्या है कि आपके पास शेड्यूल 1 में वो ड्रग्स आते हैं जो है कंट्रोल ड्रग है जो कि हमने यूज करने ही नहीं है, क्योंकि वो सब्सटेंस मेडिकली अप्रूव ही नहीं है। सेकंड में कौन से शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल 2। इट इंक्लूड्स drugs that have high potency for abuse but are approved for medical treatment like oxycodone और fentanyl। वो ड्रग्स जो कि मेडिकली अप्रूव्ड है बट वो एक हाई पोटेंसी के अंदर है और उनको हमेशा डबल लॉक के अंदर रखा जाएगा, और उसको देने से पहले 2 विटनेसेस होंगे, एक जो है देखने वाला, दूसरा उसको ड्रॉ करने वाला, तीसरे को लगने वाला। तो इसलिए ये कंट्रोल ड्रग है, हाई पोटेंसी है, इसकी एडिक्शन डोज बहुत ज्यादा है, एडिक्शन इसके रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? कंट्रोल ड्रग में रखते हैं। स्केड्यूल 1 जो देना ही नहीं है, जो अप्रूव्ड ही नहीं है। स्केड्यूल 2 जो डबल लॉक में रखते हैं। स्केड्यूल 3 it includes drugs that have a potential for abuse less than drug described in schedule 1 2 ketamine and buprenorphine, ठीक है। अब इसमें क्या है? स्केड्यूल 2 में 3 में वो ड्रग्स आते हैं जो कि लेस पोटेंसी होते हैं। केटामिन, केटामिन का तो आइडिया होगा? नो, ओके बताते हैं। ट्रोमोल, टैबलेट ट्रोमोल का आइडिया है? इट्स अ काइंड ऑफ स्केड्यूल 3 ड्रग जो कि हम लोगों को एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, लेकिन इसको ये है लेस पोटेंसी है, लेकिन अगर इसको परसिस्टेंट इन 6 महीनों तक लेंगे तो देयर इज अ चांस कि इसकी एडिक्शन हो जाए, लेकिन ये लेस पोटेंसी है, इसकी थोड़ी पावर कम है, ये उसका इतना उसका लेवल नहीं है जो एडिक्टिव लेवल 1 और 2 का है, ठीक है। स्केड्यूल 4 में क्या आता है? It includes drugs that have a low potential for abuse relative to drugs described in the previous schedule, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जो मैंने ट्रामाडोल की थी वो इसमें आ गई है बेंजोडाइजेपिन्स। जिस तरह मिडाजोलैम है, टैबलेट मिडाज लेते हैं या टैबलेट एल्प लेते हैं, एल्प्राजोलैम का टैबलेट का नाम सुना होगा, टैबलेट एल्प जो टेंशन में नींद ना आ रही हो तो लेते हैं, याद है? कईयों ने ली होगी। टैबलेट एल्प जो है वो स्केड्यूल 4 में आती है, वो बेसिकली लेस पोटेंसी है, ठीक है, और उसकी जो है ना इतना सिमिलर इफेक्ट नहीं है, और उसकी हाफ लाइफ इतनी है कि वो जल्दी फटाफट मेटाबोलाइज होकर निकल जाएगा, और उसका इफेक्ट बॉडी पे बहुत कम रहेगा, एडिक्टिव रेट बहुत कम है, ठीक है। इट्स लाइक इट वुड बी 100% एडिक्टिव रेट, इट वुड बी 100% एडिक्टिव रेट, दिस वुड बी 75%, this would be 50% and this would be 0, or is as no, it would be 50% and this would be 25%,
and this would be 0%. Okay? Understood? It's similar to this. इस तरह समझ लें कि ये इस तरीके से एडिक्शन रेट परसेंटेज है इनकी. Schedule 5 में क्या है? It includes a drug that have a low potential for abuse like pregabalin. Pregabalin tablet एक ऐसी है जो कि न्यूरोपैथिक पेन के लिए डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है. उनकी टांगों में पेन होती नहीं है, सर्कुलेशन की प्रॉपर ना जाने की वजह से उनको वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होती है तो नर्व्स पेन करती हैं. तो हम उनके लिए न्यूरोपैथिक पेन के लिए pregabalin tablet देते हैं. ठीक है, gabapentin के नाम से आती है, अवेलेबल है मार्केट में. नेक्स्ट, पीछे समझ आ गया था? कंफर्म? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है, तीसरा मसल मिसयूज ऑफ ड्रग्स एक्ट. ये ड्रग्स कंट्रोल बाय यूनाइटेड किंगडम, ये यूके ने बनाया था. ठीक है, United Kingdom misuse of drug in Act in 1971. These drugs are known in the UK as controlled drugs. This is similar to the controlled drug, US controlled drug. दोनों सेम हैं, लेकिन वो UK ने बनाया था, वो US ने बनाया था. Because we are third country in Asia, so that's why we are using this both. इसलिए हमें पढ़ने की लाज़मी है. These act set out three separate categories. तीन separate categories में आता है, class A, class B, class C. Class A में those drugs which contain high potency of addiction like 100% opiates, fentanyl, और जितनी भी potency है. अगर आप schedule 1 और schedule 2 को आप category A में लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद class B में क्या है? These drugs which contain medium potency. आप schedule 3 और 4 को class B में लिख लीजिए. Understood? और class C which contain low potency addiction, steroids and GABA, वही gonadotropins, वही जो class A में है. Understood? Similar है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है. मतलब इसमें लिख लेंगे schedule 1, schedule 1 लिख दें and 2. इसमें लिख दें 3 and 4. इसमें 5. खत्म. सही हो गया? अब यूके और यूएस सेम हो गया, लेकिन सिर्फ डेट्स याद रखो कि कब किसका हुआ था, किसने किया था, मिसयूज ऑफ ड्रग एक्ट किसका है और यूएस लीगल एक्ट किसने किया था, कब करवाया था. अब आगे नेक्स्ट आ गई फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट.